Assalamu alaikum. I am Shazma Sikandar and today I will discuss about metal organic frameworks and its application. What are metal organic frameworks? Organic and inorganic three-dimensional coordination polymers, crystalline porous materials consist of regular array of positively charged metal ions surrounded by organic linker molecules. They are 7 nanometer in thickness, size ranging from 100 to 300 नैनोमीटर। अब हमारे पास ये मेटल आयंस या फिर क्लस्टर है। जब ये ऑर्गेनिक लिंकर्स के साथ लिंक करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड, तो वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क बना देते हैं या चैनल ऑफ नेटवर्क बना देते हैं, जिसे हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स भी कहते हैं। Metal organic frameworks. Metal organic frameworks are made up of metal ion, act as coordination center, and organic ligands act as linker between metal centers. अब ये जो मेटल नोड है इन्हें मेटल आयंस भी कहते हैं। ये जो मेटल आयंस हैं इनको लिंक करने के लिए ऑर्गेनिक लिगेंड्स, जिन्हें लिंकर भी कहते हैं, वो यूज होते हैं। जब ऑर्गेनिक लिगेंड्स और मेटल नोड जो हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू लिंक करते हैं, तो ये हमारे पास एक नेटवर्क बना देते हैं, जिसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं। दे आर आइसो रेटिकुलर इन नेचर। आइसो मीन सेम स्ट्रक्चर, रेटिकुलर मीन डिफरेंट कैविटी इनसाइड्स। जब ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इनकी जो कैविटी होती है ना इनसाइड, वो डिफरेंट हो सकती है, वो स्मॉल भी हो सकती है, बिगर भी हो सकती है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चरली मॉलिक्यूल को देखते हैं, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सेम होती है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। Why metal organic frameworks? Because they have excellent chemical stability and unique morphology. Excellent chemical stability means that they resist the exposures of chemicals with the environment. They have great structures, sensors, membranes, and tunable properties. They have high surface area to volume ratio and have permanent porosity. Permanent porosity means that they have void fraction between their structures, that they have pores inside their structures. This is the physical and chemical properties of the metal organic frameworks, that they act as a node and the linker. This is the charge conductions. When metal ion give electrons to form networks, then they form positive ion and they gets positive charge. This is the porosity and a high surface to volume area to volume ratios. Their cavity size is different, but they are structurally same. Structure and composition of metal organic frameworks. There are four levels which describe the structure and composition of metal organic frameworks. Level 1, which consists of the metal ion called nodes and organic linkers or ligands. When they are linked through coordination covalent bonds, these may be multivalent or monovalent. Zinc, iron, and zirconium etc. act as a metal. When they combine with the organic linker, then they move to the level 2, which is secondary building unit. Secondary building units serve as the template or unit cell for the growth of metal organic frameworks. Then they move towards the level 3. Level 3 encompasses the pores and cages. ये cages हमारे पास बने हुए हैं और इनके दरमियान जो है वो हमारे पास pores हैं। ये डिटरमिन करते हैं पर्टिकुलर मेटल आयन और लिगेंड्स को। उसके बाद हम लोगों ने जाना है लेवल 4 में। बाकी तीनों लेवल्स की तरह जो लेवल 4 है वो हमारे पास मेटल आयंस और लिगेंड के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमारे पास इट डिस्क्राइब्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशंस एंड डिपेंड्स ऑन हाउ द इंटरनल फ्रेमवर्क्स ग्रोज। किस तरह से इंटरनल फ्रेमवर्क जो है वो हमारे पास ग्रो कर रहा है। Next, preparation of metal organic frameworks. Hydrothermal and solvothermal methods are commonly used for preparation of metal organic frameworks because they work at high temperature and pressures and they have suitable conditions for working. N-N-dimethyl formamide are used as a solvent. इन्हें हम solvent के तौर पे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये थर्मली स्टेबल होते हैं। दे हैव ऑप्टिमल रिएक्शन कंडीशंस और ये हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उनको ऑप्टिमल कंडीशंस देते हैं कि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सकें।
सिंथेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, पहले हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े हैं, वो कॉमन यूज होते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में स्लो इवेपोरेशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, माइक्रोवेव, सोनोकेमिकल और मैकेनोकेमिकल, इन पे भी काम हो रहा है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हमने देखनी है। एप्लीकेशंस बायोमेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, कैटालिसिस एप्लीकेशंस हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज है, सेंसर के तौर पे हैं, गैस सेपरेशन है और गैस प्यूरिफिकेशन है। नेक्स्ट, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स इन बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। ये अब हमारे पास जो मेडिकल फील्ड में न्यू वेज इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ये नोवल वेज टू इंट्रोड्यूस ड्रग्स इनटू बॉडीज, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ऑफर हाई ड्रग लोडिंग, बायोडिग्रेडेबिलिटी और वर्सटाइल फंक्शनैलिटी। ये ड्रग डिलीवरी में भी काम आते हैं, ये थेराप्यूटिक एजेंट्स के तौर पे भी काम करते हैं, ये नैनो कैरियर्स के तौर पे भी ड्रग्स में काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी को, ड्रग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, और जो थ्रेट होते हैं उन्हें हमारे पास वो ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। उसके बाद मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जब बायो सेंसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जब बायो सेंसर के तौर पे एक्ट करते हैं तो these act as sensing material for heavy metals. हैवी मेटल्स के जो सेंसिंग मटेरियल के तौर पे ये एक्ट करते हैं, उनमें गुड रिपीटेबिलिटी होती है, जिनमें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स काम कर रहते हैं, हाई सेंसिटिविटी होती है, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होती है, इसलिए डिटेक्शन लिमिट उनकी कम हो जाती है, बेटर फंक्शनलाइजेशन होती है उनकी और हाई स्टेबिलिटी होती है। कैटालिसिस, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स अपने वाइड स्ट्रक्चर्स की वजह से इनकॉर्पोरेट करते हैं कैटालिटिकली एक्टिव ग्रुप्स, और स्ट्रक्चर्स की वजह से ये हमारे पास सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस्ड मिक्स ऑफ क्रिस्टल नेचर, और इनके जो पोटेंशली ये ब्रिज के तौर पे एक्ट करते हैं, जो उनके पोर्स होते हैं ना, जैसे माइक्रो और मैक्रो पोर्स हैं, उनके दरमियान ब्रिज के तौर पे ये एक्ट करते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के साथ तो ये प्रोडक्ट में हमारे पास एक नेटवर्क बना देते हैं, जो कि बैलेंस नेटवर्क के तौर पे। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स इन वाटर ट्रीटमेंट, यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से और पोरस जियोमेट्री की वजह से ये हमारे पास एड्सॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ वेरियस टॉक्सिक कंपोनेंट इन वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो हमारे पास टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है, या एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें उनको बेटरमेंट की तरफ ले जाता है। वेस्ट वाटर में म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर 65% है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर 35% है। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में एफ्लुएंट्स होते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर एफ्लुएंट होते हैं। तो जो ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है ना, ये हमारे पास सेफ डिस्चार्ज के तौर पे एक्ट करता है और वाटर रीयूज को के तौर पे एक्ट करता है, या वाटर की रीयूज बनाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल में, हॉस्पिटल में होता है, जो इंडस्ट्रीज में वाटर वेस्ट होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होता है, तो उसको इंक्रीज, बायोडिग्रेडेबिलिटी उनकी इंक्रीज करता है और उसको भी रीयूज करते हैं हम लोग। और रिफाइनरी में है, अदर इंडस्ट्रीज में है, सेफ डिस्चार्ज और वाटर रीयूज। टेक्सटाइल वेस्ट वाटर है, उसको भी वाटर को ये रीयूज बना देता है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है कि दे परफॉर्म, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये हमारे पास बेटर परफॉर्म करते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, इन्हें कोई हाई फाई इतना टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता है इनकी फंक्शनिंग के लिए, ये रूम टेम्परेचर पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स या नेटवर्क्स होते हैं जिनके लिए जो ऑप्टिमल कंडीशंस या हाई कंडीशंस जो है ना वो रिक्वायर होती हैं। इनके डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो लेस होती है और इनके स्टेबिलिटी के किसी किसी टाइम इश्यूज आ सकते हैं। It all was from my side. Thank you.